जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेनका आंटी जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग्स देन दा शुक्राना, अंग संग रहन दा शुक्राना मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरु जी ने कल बहुत ब्लेस असी बाहर गए डिनर ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰੀਅਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ लिए ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ हैं, पर गुरु पा ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਨਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੇਰੀ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਬਹਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰੀਅਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗਲਤੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार का दिन है और मेरे प्यारे गुरुपा के शुक्राने का दिन है। गुरुपा के स्वरूप के आगे ही बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग हमेशा शेयर कर देते हैं। गुरुपा उनको बहुत ब्लेस करे। और ये गुरुपा के श्री चरणों में मेरा आज संगत जी ये शुक्राना है कि गुरुपा कैसे हर पल हर एक संकट, हर एक कष्ट, हर एक
बीमारियों से गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं। हर बड़ी से बड़ी विपदा आने से पहले ही गुरुपा कैसे उसको सत्संग सुनवा कर काट देते हैं। अपने ऊपर कितने ही हमारे कर्म लेते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। तो इतने कृपा है गुरुपा के, अपार ब्लेसिंग्स का मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो बहुत कम है। आज ये शुक्राना है संगत जी कि बहुत कुछ ब्लैक मैजिक जो मेरे ऊपर भारी मारण क्रिया है की गई थी, जो बहुत सालों से शादी के बाद ही लगभग 16-17 साल हो गए, तो वो इतने भारी मारण क्रिया थे। तो गुरुपा बोलते हैं कि वो तू तो मतलब आज मतलब इस धरती पर रहती भी नहीं, तू जिंदा भी नहीं रहती, तेरी सांसें चल रही है ना, वो गुरुपा की ही कृपा से चल रही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना तो मैं हमेशा करती हूँ गुरुपा, जितना भी करूँ कि आपने कैसे अपनी इस बेटी को और इस बेटी के परिवार को इतने भारी भारी ब्लैक मैजिक जो करते रहते हैं संगत जी, करते रहते हैं, वो लोग रुकते नहीं हैं। और मेरे गुरुपा हमें हर पल बचाते हैं प्रभु, हर पल हमारे कर्म हमारे कष्ट काटते हैं प्रभु, अपने ऊपर लेते हैं, हमें हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं, हमारे अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म करते हैं और फिर एक हीरे की तरह हमें फिर तराशते हैं प्रभु। और ये सब गुरुपा ही कर सकते हैं, इतना प्यार अपने हर एक संगत से, हर एक से सिर्फ गुरुपा ही इतना प्यार कर सकता है संगत जी, और कोई नहीं। मेरा आज ये बहुत बड़ा एक शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी गुरुपा ने फिर आज एक बहुत बड़ी अरदास पूरी की है संगत जी। मारण क्रिया करने वाले तो तरह तरह के बीमारी, सर से लेकर पैर तक के, गुरुपा ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका सत्संग गुरुपा ने, मेरे प्यारे गुरुपा ने नहीं सुनवाए हैं और अभी भी सुनवा रहे हैं। तो बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि वो लोग करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन मेरे शिव जी, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरुपा महाशिव के कृपा से सब कुछ बचा हुआ है, गुरुपा की कृपा से अभी भी सब कुछ, और मेरे बाबा आगे भी सब ठीक रखेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पर। तो संगत जी मुझे मतलब कुछ साल पहले से ही मतलब बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, और जिसके लिए मुझे मंथली मतलब बीपी चेक करवाना पड़ता था डॉक्टर से, और मेडिसिन लेनी पड़ रही है अभी भी। तो उसके लिए डॉक्टर मतलब ऐसे हर 6 महीने या साल भर में एक बार पूरा टेस्ट करवाते हैं, जैसे सीबीसी है, मतलब जितना होता है शुगर का, थायराइड, उसके बाद ये किडनी का, वो सब सारा टेस्ट कराते थे, यूरिन, तो वो सब टेस्ट करवाते थे। तो वो लास्ट टेस्ट मेरा मतलब कि मार्च 2024 को हुआ था। तब मैं गुरुपा को नहीं जानती थी। तो उसके बाद जैसे इतने महीने से चेकअप चल रहा है डॉक्टर से और मेडिसिन दे रहे हैं, गुरुपा की कृपा से बीपी पहले जो बहुत मतलब अप डाउन होता था वो अब नॉर्मल मतलब गुरुपा की कृपा से रहने लगी है। लेकिन दवाई तो डॉक्टर चलाते रहते हैं ना, तो चल रहा। तो उसके बाद अभी जून में जब मैं लास्ट बार दिखाई तो गुरुपा मतलब डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए सारा। तो संगत जी मैं इन डॉक्टर से टेस्ट से इतना घबराती हूँ इन सब से कि मैं नहीं बता पाऊँगी। गुरुपा को सब पता है, बहुत घबराती है क्योंकि मेरे गुरुपा 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, हस्बैंड अंकल का भी मतलब रेलवे में जो ड्यूटी है उनका भी बहुत ही रिस्क का ड्यूटी है। तो मतलब सब कुछ और कोई नहीं है गुरुपा देखने वाला घर में, तो मैं बहुत घबराती हूँ। तो
मैं संगत जी जून में लिखे थे टेस्ट, में जुलाई में करवा के दिखाना था, लेकिन मैं मेडिसिन मंगवा के खाती रही, लेकिन मैं जुलाई में डर से नहीं टेस्ट करवाई, क्योंकि ऐसे ऐसे शरीर में लक्षण दिख रहे थे कि मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या बीमारी निकल जाएगी, फिर क्या होगा, मेरे इस घर परिवार का सब बिखर जाएगा। मन में बहुत बहुत मैं गुरुपा बोलते हैं कि तू बहुत ओवर थिंकिंग भी करती है, तो सॉरी गुरुपा, आप ही इन सब से रक्षा कीजिए। तो फिर नहीं करा पाई, तो लास्ट में बहुत दिन हो गया, फिर हस्बैंड जी भी बोलना बंद कर दिए कि अब जब आप मतलब अपने मुंह से बोलोगी कि टेस्ट कराना है तभी ले जाऊंगा, लेकिन देखिए वो भी चुप हो गए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं ना बुधवार को गुरुपा से लास्ट में रात को 13 तारीख को रात को 13 अगस्त को गुरुपा को अरदास करती हूँ कि गुरुपा अब आप ही मेरे साथ चलकर मेरा सारा टेस्ट कराइए। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, बिना टेस्ट किए दवाई खा रही हूँ, तो आप ही टेस्ट कराइए बाबा, मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लगता है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुपा ने मेरे हस्बैंड की ड्यूटी को भी ऐसे मैनेज कर दी कि वो थर्सडे को मतलब सुबह सुबह घर आ गए और फिर बोले कि आज तो टेस्ट करवाना ही है। तो मैं भी बोली कि हाँ मुझे तो पता है कि मेरे गुरुपा मुझे सब ले जा रहे हैं, करा रहे हैं। फिर मैं गुरुपा के साथ मतलब हस्बैंड अंकल जी के साथ गुरुपा का ब्रेसलेट पहन के गुरुपा का, और मैं गई, और रास्ते में हर जगह बाइक में हम लोग जा रहे थे, पूरे रास्ते मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। डबल नंबर जैसे 88, 44, 22, 33, उसके बाद भोले बाबा का स्वरूप गाड़ी में नज़र आई, हनुमान बाबा, जय हनुमान बाबा लिखा, जय शिवनाथ भोलेनाथ, ऐसे गाड़ियाँ मुझे बहुत दिखी रोड में। उसके बाद जब मैं वहाँ बैठी थी तो मेरे हस्बैंड मतलब टेस्ट का बात कर रहे थे, तो वो सब तब भी गुरुपा मुझे दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी मैं सारा टेस्ट कराई, और रात को वीरवार के दिन कल जब मैं घर में 1 घंटा का सत्संग भी करती हूँ, तभी मेरे हस्बैंड के मतलब मोबाइल में व्हाट्सएप पर सारा टेस्ट उन लोग का रिपोर्ट भेज दिए। लेकिन हस्बैंड जी ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं सत्संग की ही तैयारी कर रही थी, लंगर सब बनाने की। तो फिर बाद में वो बताएं कि मेरा गुरुपा की कृपा, मेरे महाशिव ने कैसा चमत्कार किए हैं संगत जी, कि मेरा सारा का सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। खाली मेरा संगत जी हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है। तो इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज मैं इस शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ। मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे सोने सोने सोने, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। गुरु जी के लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव वे में मुड़ गई है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ और काफ़ी टाइम से मुझे ज्वाइनिंग का वापस लेटर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये योजना ही ऐसी थी जिसमें हर 6 मंथ में रिलीव कर दिया जाता और वापस से ज्वाइनिंग दी जाती। लेकिन गुरुजी ने इस बार इतना बड़ा चमत्कार किया कि अरदास लगाने पर हर बार तो 1.5 महीने 2 महीने का गैप दे देते थे वो, पर गुरुजी की अरदास के बाद में मुझे उन्होंने विदिन 15 डेज उन्होंने हमें वापस बुला लिया। यानी कि अगर आपको मुझे 31 जुलाई को रिलीव किया तो 18 अगस्त को हमें ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने बुला लिया था। संगत जी बहुत सारी चीज़ें हुई, ज्वाइनिंग भी गुरुजी ने दिलाई। फिर हमारी जो पीछे लास्ट टाइम की जो 3 मंथ्स की सैलरी थी वो रुकी हुई थी किसी कारणवश। और आपको भी पता है संगत जी, ये बहुत कहने में छोटी बात है, लेकिन किसी इंसान की 3 महीने सैलरी नहीं आती तो वो हर एक चीज़ में
अपना मन मारता है, चाहे वो फेस्टिवल्स हों, चाहे वो किसी की मदद को लेकर के कुछ करना चाहें, कुछ भी चीज़ खुद के लिए भी अगर कुछ खरीदना चाहें, यहाँ तक कि दवाई वगैरह लेने के मामले में भी हमें ये सोचना पड़ता है। बार बार यही मन में से निकलता था कि सैलरी आ जाएगी तब देख लेंगे, सैलरी आ जाएगी तब देख लेंगे। तो गुरुजी ने वो सैलरी भी हमें दिलवाई, मतलब अरदास करने के 3 दिन के अंदर अंदर मुझे सैलरी मिल गई। शुक्राना गुरुजी, आपने अपने बच्चे की हर एक छोटी छोटी बात को बड़ा ही आसानी से सुनकर पूरा किया है। गुरुजी हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी ने, क्योंकि सैलरी रुकी हुई थी, इस चक्कर में मैंने एक फॉर्म भरा था आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का, तो उस फॉर्म की फीस मुझे भरनी थी, लगभग 10,000 के आसपास थी, 9,000 समथिंग थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं फीस ना देने के चक्कर में मुझसे ये कोर्स छूट जाएगा और मैं शायद ये डिप्लोमा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आप मानेंगे नहीं संगत जी कि मैंने लास्ट डेट पर अपनी फीस जमा करवाई है। गुरुजी ने एन मौके पर मेरी सैलरी दिलवा करके मुझे इस कोर्स में भी शामिल करवाया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा 20 साल का है, तो उसके साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा हमारे कहने में नहीं चलता और थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ा बदतमीजी करता है। लेकिन उसके साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, काफ़ी उसने परेशान कर दिया था, तो मैंने भी गुस्से गुस्से में बहुत कुछ उसे बोल दिया बच्चे को, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी खूब हो गई थी। और मैं घर से फिर जॉब जहाँ करती हूँ वहाँ पे आ गई, बट मेरा मन बड़ा दुखी था। कहते हैं ना कि माँ का मन मानता नहीं है कभी भी। तो रोज़ अरदास करनी कि मेरे बेटे को ब्लेस करना, उसे सही करो गुरुजी, उसको सद्बुद्धि दो ताकि वो अपने माँ बाप की इज्जत करे, और वो बाहर भी निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसके इस नेचर का इफेक्ट पड़ेगा, तो वो ना हो। गुरुजी उसे ब्लेस करे। रोज़ उसकी अरदास करती, उसके लिए रोती कि मेरी बात नहीं हो रही, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, गुस्सा है। बट 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर गुरुजी ने सब चीज़ें ठीक करवाई। बेटे ने भी स्वीकार किया, मम्मा मेरे से गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम अंडरस्टैंडिंग से रहेंगे, सब हम अच्छे से बात करेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपने ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर करवाई। पति के साथ भी मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी किसी बात को लेकर के, लेकिन गुरुजी ने तुरंत उसे ठीक किया। मैंने गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया, तो वो जैसे रात को कोई दिक्कत हुई और सुबह ही वो सॉर्ट आउट हो गई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बहुत जल्दी मेरी अरदास पूरी की थी। संगत जी, मेरी ननंद का बेटा है, तो उसने सोचा कि भी मोनी बाहर नहीं निकलता, शायद इस वजह से उसका स्वभाव ऐसा है, तो उसने सोचा कि इसको मैं दिल्ली ले जाता हूँ अपने साथ, तो वहीं पे जॉब करेगा, तो इसको भी समझ में आएगा माँ बाप की वैल्यू क्या होती है और थोड़ा रहना भी सीखेगा बाहर। तो वो मेरे बेटे को अपने साथ दिल्ली के लिए ले गए। साथ में ननंद भी थी और मेरी चाची सास भी थी। तो जब वो बेटा रेवाड़ी पहुंचा, जयपुर टू रेवाड़ी पहुंचा, तो पता नहीं क्या ऐसी चीज़ हुई उसके मन में, क्या अवेकनिंग हुई कि उसने फ़ोन किया, मुझे भी किया, अपने पापा को भी किया कॉन्फ्रेंस में लेकर के कि मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मम्मी ऐसा जो सीन है जो आप सोच रहे हो, तो मुझे वैसा कुछ लग नहीं रहा और मैं शायद गलत माहौल में जा रहा हूँ, क्योंकि उनके पास लोग पीने खाने वाले और नशा करने वाले आते हैं, तो मुझे ठीक सा नहीं लग रहा। मतलब पता नहीं क्या ही गुरुजी ने उसके मन में डाला, क्या पता क्या ही कष्ट था कि जो गुरुजी ने उसका कटवा दिया और उसे तुरंत बीच रास्ते से ही, दिल्ली पहुंचने से पहले ही घर भिजवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप अपने बच्चों को हाथ दे करके बहुत 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 जल्दी बचा लेते हो। संगत जी, एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, यानी डेली ऐसा ही हो रहा था कि मैं खाना खा रही थी और खाना खाते ही मुझे पेट में दर्द होता था। तो कुछ दिन बीते तो मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि शायद नए गेहूं का आटा होगा, तो उसकी वजह से दिक्कत होगी। मुझे नहीं पता था, पर मैंने जल प्रसाद पीती तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई तो फिर मैंने वो आटा चेंज किया। आटा चेंज करते ही मेरे पेट में भी दर्द ठीक हो गया। यानी गुरुजी के जल प्रसाद से कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ बुद्धि भी आती है और हमें ये पता चलता है कि किस चीज़ में क्या दिक्कत हो रही है, और गुरुजी उस चीज़ से भी हमें निकाल देते हैं। इस तरह से गुरुजी ने मेरे पेट दर्द को भी ठीक किया। संगत जी, मुझे पीरियड
में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब बहुत धीरे धीरे कम आ रहे थे और उससे मेरे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी। पेट में भी दर्द हो रहा था, मतलब हार्मोन्स जैसे होता है ना, अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो चिड़चिड़ापन और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, खुल करके नहीं आ रही थी। गुरुजी ने इतना, मतलब मैं कहती हूँ गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है संगत जी। उन्होंने मेरी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतना आसानी से सॉल्व आउट कर दी। सच में गुरुजी अपना कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बार मैं घर के अंदर बैठी थी संगत जी, तो घर के अंदर चमगादड़ें आ गई थी 2, है ना। तो मैंने गेट खोल दिया, अंदर लाइट वाइट बंद की तो वो बाहर निकल गई। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो गेट के अंदर, गेट के पास में ही सीढ़ियों पे बैठी थी। तो मैंने फिर दरवाजा परमानेंट ही बंद कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, ये अंदर नहीं आएगी, मैं बंद ही रखती हूँ। संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैं जब सो करके उठी तो वही बैट मुझे मेरे स्टडी टेबल पर मिली और वो मर चुकी थी। संगत जी पता नहीं कौन सा कष्ट था कि किसी ने, पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक करके कुछ भेजा था, तो गुरुजी ने उसे भी भस्म किया। क्योंकि मैं अपने रूम में भी गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ संगत जी, उन्हें देख के उठती हूँ, उन्हें देख के सोती हूँ, क्योंकि गुरुजी के अलावा हमारा कोई भी नहीं होता है संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी जिंदगी भर बस इतना ही आपसे अरदास है कि हमेशा अपनी चरण शरण में रखना, हमेशा आप अपने सानिध्य में रखना, ताकि कोई भी बुरी चीज, कोई भी बुरे लोग, बुरी बला हमें छू भी ना पाए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया है। आपने कुछ दिनों में ही हर चीज को आपने सॉल्व आउट किया और मेरे माइंड को एक उलझन से सुलझन में बदल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ वो सिर्फ आप ही की देन है। आप हमेशा कहते हो कि आपकी जॉब में आपको मैं ऐसी कंडीशन, ऐसे स्थिति तक पहुंचाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत अच्छी स्थिति में मैं तुम्हें लाऊंगा और दुनिया देखती रह जाएगी कि ये कैसे हुआ संभव। जो लोग तुम्हें हराने का प्रयास कर रहे हैं और हारता हुआ देखना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के सामने तुझे जिताकर उन्हें नीचा दिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और सारी संगत को भी थैंक यू जिन्होंने मुझे सुना। हो सकता है इस सत्संग के माध्यम से किसी ना किसी का कोई आंसर मिला हो। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।